हमने कौम को तन्हाई का एहसास नहीं दिलाना, हमने उसको ये एहसास दिलाना है कि हम आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना हैं, हम आपकी आवाज़ हैं और कौम के लिए और मुल्क की आज़ादी के लिए जंग लड़ना ये अपना फरीज़ा भी समझते हैं और इसे अपनी सआदत भी समझते हैं। बीस नवंबर को पेशावर में इसी तरह का एक बड़ा अवामी मुजाहरा होगा और वहाँ पर भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उसमें और इंशाअल्लाह बहुत ही कामयाब मुजाहरा करार दिया जाएगा। हम आज कौम को ये भी बतला देना चाहते हैं कि नाजायज हुक्मरान और धांधली की पैदावार हुकूमत आइंदा इलेक्शन के लिए अभी से अपनी जारी पार्लियामेंट को ऐसी आइंदा भी इलेक्शन में बड़ी आसानी के साथ वो धांधली कर सके, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ सीना सिपर होकर उसका मुकाबला कर रही है। असम्बली के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ उनको कानून साजी में शिकस्त भी दे चुकी है और मुश्तरका इजलास में उन्हें अक्सरियत हासिल करने की जब उम्मीद न रही तो ऐन वक्त पर उसको मुलतवी भी कर दिया गया। आज जब दोबारा इजलास बुलाया गया है तो अफवाहें गश्त कर रही है और ये सब अफवाहें ही नहीं बल्कि हकीकत के करीब तर बातें हैं कि छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं उनको रियासती इदारे दबाव में लाकर उनकी गर्दन मरोड़ कर और उनके गर्दनों पर बूट रखकर उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। हमारे पास ये रिपोर्टें आ रही हैं। हम इदारों का एहतराम करते हैं और जब इदारे हमें कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हम गैर जानिबदार हैं और फिर बहुत बड़ी लेवल पर हमसे ये बात की जाती है तो हम उन पर एतमाद भी कर लेते हैं। लेकिन आज फिर उनकी गैर जानिबदारी मजरूह हो रही है। आखिर ज़रूरत क्या है कि ये सब कुछ 19 नवंबर से पहले पहले करना है। न 19 नवंबर को और न 19 नवंबर के बाद इस सारे मामले को मशकूक बनाता है कि शायद सियासी इदारों या उनकी किसी शख्सियत के साथ कमिटमेंट की बुनियाद पर यह सब कुछ हो रहा है। ये पाकिस्तान की जमहूरी और पार्लिमानी किरदार पर एक बदनुमा दाग है। इदारों को खुद सोचना चाहिए कि हमें गैर मुतनाज़ा रहना है, हमें गैर जानिबदार रहना है और हम भी उनको गैर मुतनाज़ा देखना चाहते हैं, हम भी उनको गैर जानिबदार देखना चाहते हैं। यही हमारी ख्वाहिश है
کہ پاکستان کی سیاست سے یہ داغ ختم ہو جائے. لیکن اور وہ بھی ناجائز مداخلت، تو پھر شکایت کرنا تو ہمارا حق ہے، گلہ کرنا تو ہمارا حق ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پھر بھی آئینی اور قانون پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل جناب شاہد حقان عباسی صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے، اور فوری طور پر جناب کامران مرتضیٰ صاحب اور عطا تارڑ صاحب کو رابطے میں لیں اور پورا ایک سپریم کورٹ لیول کا ایک قانونی پینل بنائیں اور ان قوانین کا جائزہ لیں تاکہ ہم عدالت سے رجوع کر سکیں. ہم قانون اور آئین کا راستہ لینا چاہتے ہیں. ہم اگر عوامی مظاہرے کر رہے ہیں ایک جمہوری ماحول میں عوام کو تسلی دینے کے لیے، یہ ناگزیر امر ہے اور اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو نئی صورتحال ہے اس پر ہم قوم کو ہر وقت اعتماد میں لینا چاہتے ہیں. پی ڈی ایم اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ملک میں امن و امان ہونا چاہیے. امن و امان اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب شہریوں کے انسانی حقوق کا تحفظ ہو، صوبوں کے حقوق کا تحفظ ہو، ان کے شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہو، ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو. اور اس حوالے سے تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت جو نوجوانوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، اس کو پھر لاپتہ کر دیا جاتا ہے، اور سال ہا سال سے لاپتہ لوگوں کے لیے ان کے پیارے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ان کے بوڑھے ماں باپ، ان کے آنسو بھی اب آنکھوں میں نہیں رہے، خشک ہو گئے ہیں. ان کے دلوں کے زخم، اس کے لیے مرہم بھی ختم ہو گیا ہے. لیکن شقی القلب قوت ہے، وہ اس انسانی حق سے اور سمجھتے ہیں کہ ہم ریاست کی خدمت کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہے، عدالتیں موجود ہیں، آئین موجود ہے، قانون موجود ہے. ان راستوں سے ہم کسی مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں. اگر انصاف کا تقاضا یہی ہے تو پھر ایک جمہوری ماحول میں، ایک جمہوری ملک میں ایسے واقعات، اور کہ جس طرح ایک ڈکٹیٹر کے ملک میں ہوتے ہیں، ایک آمرانہ ممالک میں، بادشاہتوں میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے جیسے جمہوری ملک میں بھی وہی واقعات ہو رہے ہیں. کیا فرق ہے دوسرے ملکوں میں اور ہمارے ملک میں؟ کون حاکم ہے یہاں کا؟ نادیدہ قوت ملک کے حاکم ہیں یا آئین اور قانون کی روشنی میں کام کرنے والی قوت ہیں؟ وہ ملک کے مالک ہیں. جا رہا تشویش پائی جا رہی ہے، اور ہم ایک مطمئن اور اس طرح سے پاک ایک سوسائٹی چاہتے ہیں، ایک معاشرہ چاہتے ہیں جہاں ہر انسان اپنے حقوق کے حوالے سے مطمئن ہو، اور اس پر انشاءاللہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے نئے مستقبل کو ہم تراش سکیں. مولانا صاحب، گلگت
अदालत में खुद एक सवाल या निशान है। क्या अभी आप तवक्को रखते हैं कि जब अदालत में आप जाएंगे तो वहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, ये चीज़ें अदालत के ऊपर ऐसे दाग डाल रहे हैं कि जिससे माजी के तमाम फैसले मशकूक हो जाते हैं, लेकिन ताहम हम फिर भी उसूल का रास्ता नहीं छोड़ते। हम अब भी समझते हैं कि इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए। आज़ाद और खुद मुख्तार एक ऐसे इदारे बनने चाहिए कि जो इस किस्म के बयानात का तज्जिया कर सकें, इसके अवामिल को समझ सकें। ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? ये तीसरा चौथा जज है जो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, ऑन रिकॉर्ड कर रहा है, हल्फिया तौर पे कर रहा है, तो जाहिर है इस चीज़ों को जांचना चाहिए। जिसने ये बात की है वो जिंदा है, इससे पहले भी जो जजों ने बातें की हैं वो भी जिंदा हैं। तो फिर इस तरीके से हर चीज़ पर मट्टी पाओ, इसी तो काम नहीं चलेगा जी। मौलाना साहब 20 की बात की यहाँ पर दो नौजवानों को बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का अस्तर संभाल किया गया है। इस हवाले से तमाम ख्यालात हैं जो कि कल के एहतजाज के एजेंडे में ये भी शामिल है। देखिए, हम इंसानी हुकूक की बात ज़रूर करेंगे और ये पूरे मुल्क में है। तालीमी इदारों से लोगों को उठाया जाता है, दीनी मदारस से उठाया जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों से उठाया जाता है। अगर वाकई कोई नौजवान इस किस्म के किसी अमल में मुलव्वस है कि जो रियासत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमारी नज़र में वो जुर्म है। लेकिन उस जुर्म से निमटने के लिए आईन और कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जबरी तौर पर ये क्या मालूम कि आपने किसको सजा दी और कैसे सजा दी। एक खुफिया इदारा और उसके चंद अफराद वही समझे कि हम मुतमैन हैं, हमने जो कुछ किया है, ये काफ़ी नहीं। कौम मुतमैन होने चाहिए। मौलाना साहब नवंबर के बाद आप कितने महीनों तक हुकूमत को चलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैं आपके सवाल को समझ रहा हूँ और आप भी शायद यही चाहते हैं कि मैं वो बात करूँ कि हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत चलाई जा रही है। हम चलाने वालों को भी जानते हैं और चलने वालों को भी जानते हैं। अपाहज हुकूमत और सहारे से चलने वाली हुकूमत, ये हुकूमत नहीं कहलाती। हुकूमतें चलनी चाहिए अवाम के सहारे से। मुझे बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है जब हमारे इदारों के ज़िम्मेदारान और सरबराहान इस प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब वज़ीर आज़म के नाम से पुकारते हैं। जब वो इनको अपना बॉस के नाम से पुकारते हैं, हमें दुख होता है, हमें अफसोस होता है। हमारे पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन सिर्फ हम इज्तिनाब कर रहे हैं उससे कि कहीं बहुत ही ज़्यादा मुल्क में मामलात ख़राब ना हो। हम सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए दिन रात सोचते हैं और सूरत हाल को बिगाड़ से बचाने के लिए सोचते रहते हैं। मेरे ख्याल में हमारे इन जज्बात का एहतराम किया जाए। कौमी असेंबली में और सेनेट में ये जो आपका एहतजाजी मरहला चल रहा है, इसके बाद आपका क्या कोई राय अमल होगा? कौमी असेंबली में या सेनेट में कोई तब्दीली की अनाउंस करने के हवाले से? ये तो हालात में देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल उनको कोई अक्सरियत हासिल नहीं है। उनके इत्तेहादी जो है उनको कल तक वोट देने के लिए तैयार नहीं थे और कल ही शाम को जब इजलास बुलाया गया तो उसने एक मैसेज दिया कि शायद, लेकिन इसके दौरान हमारे पास रिपोर्टें आई हैं बाकायदा कि किन किन लोगों को सेफ हाउसों में ले जाया गया, किन किन लोगों को टेलीफोनें की गई हैं और फिर अपोजिशन के मेंबरान को जो टेलीफोनें की गई हैं कि आपने नहीं आना, वो भी हमारे रिपोर्ट में है। तो इसका माना यह है कि एक जबरी अक्सरियत है ना, एक ज़बरदस्ती वाली अक्सरियत और वो भी 4-5 वोटों की अक्सरियत। तो इस तरीके से खींच तान के और ज़बरदस्ती और गर्दन मरोड़ कर और हाथ मरोड़ कर वोट हासिल करना, इससे अगर कोई कानून बनता है वो कोई कानून की हैसियत नहीं रखेगा, उसका कोई एहतराम नहीं होगा। इसका माना है कि मुल्क जबर के तहत चल रहा है। हज़रत, इनके होते हुए ना आप किसी बिजली की तवक्को रखें, न गैस की तवक्को रखें, न पेट्रोल की तवक्को रखें, न चीनी की तवक्को रखें, न घी की तवक्को रखें। यहाँ तो हर रोज़ आप सोचते रहेंगे कि कल कितनी कमी आएगी, कल
नर्ख कितने बढ़ेंगे, कल रुपए की कीमत क्या होगी डॉलर के मुकाबले में। अब तकरीबन मैं तो समझता हूँ 175 से तो ऊपर चला गया है मामला और 180 के करीब जा रहा है। तो आम आदमी बेचारा बाजार में आपके पैसे की कीमत ही नहीं रही है। कहते हैं जी बाहर से जो पैसा आता है वो उस डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, उस घर को ज़रा पैसा ज़्यादा मिलता है। भाई उसको ये भी सोचना चाहिए कि यही पैसा जब बाजार में जाता है तो वहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसको उस पैसे से कुछ फ़ायदा नहीं हासिल होता जी। तो ये तो एक नुमाइशी किस्म की ऐसे दिल में खुश करने वाली बात है कि जहाँ मेरे घर वाले मेरे प्यारे कल 105 रुपये वसूल करते थे तो आज 170 रुपये और 75 रुपये और 180 वसूल करेंगे। तो वसूल तो करेंगे, लेकिन बाज़ार में जो हमें कल 105 में मिलता था वो आज हमें 180 में नहीं मिल रहा है वो चीज़ थी। हालत यहाँ तक चली गई। आपकी गुर्बतें पीपल्स पार्टी से बढ़ रही हैं, क्या पीपल्स पार्टी वापस पीडीएम में आ जाएगी? देखिए, इसको अब हम अभी तक कोई संजीदा अमल नहीं समझ रहे हैं। अगर बिलावल साहब मेरे पास आए हैं तो हमने तो कभी किसी को अपने घर में आने से नहीं रोका है। आए हैं, आधा घंटा गुजार के गए हैं। अगर उन्होंने खैर सगारी का मुजाहरा किया है, लेकिन पीडीएम के साथ उनका मुस्तकबिल क्या है या क्या नहीं है इस पर तो बात ही नहीं हुई। हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं, हमारे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं। यानी इसका माना है कि वो हमें रोने का भी हक नहीं देती। यानी कौम रो रही है, हम रो रहे हैं। वाली हुकूमत है, इनके यहाँ जिहालत, हमाकत, इसके अलावा और कुछ नहीं है। न कोई विजन है, न कोई सोच है, न कोई फ़लसफ़ा है। बस आ गए और हुकूमत पर बैठ गए। और वो लोग, और आप ही में से, आपकी मीडिया में से वो लोग जिन्होंने उनके लिए कैंपेन चलाई थी, आज वो अपने सर पीट रहे हैं और अपने ऊपर लानतें भेज रहे हैं कि हमने क्या किया था, हमने क्या उम्मीदें वाबस्ता की थी। भाई एक पढ़ा लिखा आदमी क्यों ऐसे जाहिरों से उम्मीदें वाबस्ता करता है? हम भी तो पाकिस्तान के शहरी हैं, हम भी तो इसी मुल्क पे रहते हैं, हमारे पास भी जो वसाइल हैं तो इसी मुल्क के वसाइल हैं। हम भी तो इसी बाज़ार से जाकर ख़रीदते हैं और इसी मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमने तो बहुत पहले कहा था कि आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, बहुत पहले कहा था। तो थोड़ा सा इन मिस्किनों गरीबों की बात को भी समझ लिया करें कि गरीब मुल्ला के अज़ाब पर कलमा भी पढ़ लिया करो। जी, हमारे राब्तों का माना ये होता है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है मुल्क के अंदर, उन्हीं के आने का इशू है। वो फैसला उन्हें खुद करना है, जब वो तशरीफ़ लाए। लेकिन आजकल दुनिया जो है वाबस्ता है। हमने कल भी जूम पर मीटिंगें की हैं, हम ऐसे आपस में बैठे रहे जैसे हम आप एक दूसरे को आमने सामने सुन रहे हैं। मौलाना साहब, असद उमर का कहना है कि अगर अपोजिशन वाले यहाँ पर आए इस्लामाबाद में तो उनके साथ ये असर होगा, लाठीचार्ज होगा, उन पर तशद्दुद होगा। तो क्या इसके बाद आप लोगों का है प्रोग्राम? बढ़ के न मारा करें, हमें बढ़ के मालूम है कि किन बड़कों के लोग हैं। अगर अपोजिशन ने फैसला किया कि तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दे, फिर क्या? तुम्हारी हैसियत क्या है? हाँ? लेकिन बलूचिस्तान में तो इत्तेहादी बन के उनको और सहारा दिया। क्या बलूचिस्तान में अपोजिशन ने वाप पार्टी के एक मुखालिफ ग्रुप को सहारा दे कि उसको आगे लाए? बलूचिस्तान की मखसूस सूरत हाल के पेश नज़र ज़ाहिर है जी, मैं अपोजिशन में बैठा हूँ। जब ज़हरी साहब की हुकूमत थी तो हम अपोजिशन में बैठे थे, और अपोजिशन हुकूमत सारे आकर अपोजिशन में बैठ जाए तो फिर मैंने क्या कर रहा है मुझे बताओ उस वक्त। पर जब सारी हुकूमत अपोजिशन में आ जाए और मैं पहले से अपोजिशन में हूँ और मैं उस वक्त भी लीडर अपोजिशन था और मैं आज भी लीडर अपोजिशन हूँ और मेरे दामन में आकर गिर जाए सारे, तो फिर हमने तो उसी के मुताबिक फैसले करने होते हैं। वो ना आते तो हमने कोई दरख्वास्त तो नहीं की थी उनसे। देखिए, हमने चूँकि हुकूमत में न आने का फ़ैसला किया था, हमने अपोजिशन में बरकरार रहने का फ़ैसला किया था, हमने बावजूद इस सारी सूरत हाल की तब्दीली के उनकी हुकूमत में शामिल न होने का फ़ैसला किया था। उस उसूल पर हम कायम रहे हैं जी, हम अपने उसूल से नहीं हटते।
पंजाब की हुकूमत गिराने में बताया जा रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ सबसे बड़ी रुकावट है। वो कहते हैं कि ये उस्मान बुजदार है, तो इसमें कहा था कि क्या कभी आप लोगों ने एहतजाज किया है कि पंजाब की हुकूमत गिराई जाए? पंजाब की हुकूमत गिराने से पहले ये सोचें कि मुतबादल क्या है, तो अगर मुतबादल उससे भी ज़्यादा ख़राब हो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए सारी चीज़ें को सियासतदानों पे ज़रा छोड़ दें, हम बड़ा ठीक ठाक फैसले करते हैं, सब कुछ बड़ा हिसाब किताब ठीक रखते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया आपका जी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।